Hello everyone, welcome to today's session. Now we will continue with the part 2, bread making technology. We'll continue with the ingredients and their function in bread making. Last session में जो लास्ट का पॉइंट था इन पार्ट 1 में वो हमने डिस्कस किया था फ्लावर का एसेंशियल रोल क्या है, स्टार्च के एसेंशियल रोल क्या है. Now we will move to the next part, that is essential role of water. Water hydrates gluten. Yes, essential role of water. Water hydrates gluten protein during mixing, gelatinized starch during the baking, and serve as a dispersion medium for other ingredients such as yeast. Quality of water such as pH and hardness of water play an important role in dough formation. Excessively alkaline water can retard the activity of yeast enzyme. Hard water containing calcium and magnesium ions may have tightening effects and soft water or losing effect on dough. Let's move to the yeast now. Yeast produces carbon dioxide. That is the main role of yeast while in bread making or any kind of dough is formation that produce CO2. CO2. It's carbon dioxide. Yeast produces carbon dioxide and ethanol by fermentation of fermentable sugar. During the fermentation, it also helps in formation of flavors and precursors. Rate of fermentation of dough by yeast is controlled by temperature, nutrient supply, water pH, sugar concentration, salt and level and type of yeast. Generally, two types of yeast are used in baking: compressed yeast and dried yeast. There are two major types of yeast. Let me tell you first. The first is compressed yeast and second one is dried yeast. Both the types of consist of living cells. When we discuss about compressed yeast and dry yeast, what is the difference? Major difference between compressed yeast and the dry yeast. You can say that compressed yeast जो होता है वो एक compressed yeast जो होता है perishable yeast होता है. उसकी जो perishability है वो बहुत जल्दी होती है, and the dry yeast is as compared to the compressed yeast उसकी perishability कम ज़्यादा होती है, extended होती है. तो you can say that and you can use it the way, but the results जो होते हैं compressed yeast के results as comparatively dry yeast से better होते हैं. दोनों का जो formation है साइक्रोमाइसिस वो दोनों में भी same होता है. Next is salt. Salt acts as a flavor enhancer and helps to control the fermentation by yeast. It also toughens and glutens and gives less sticky dough. So important role of salt, that is you all know that is flavor enhancer and helps to control the fermentation by yeast. It also toughens the gluten and gives less sticky dough. ग्लूटेन जो है वो टफ करने का काम करता है और डो जो है वो स्टिकीनेस जो डो की अगर है, फॉर एग्जांपल बहुत मेनी टाइम्स डो बहुत स्टिकी हो जाता है, फिर उसमें आप फ्लावर ऐड करते हो, फिर से पानी ऐड करते हो, डो की जो कंसिस्टेंसी है वो खराब हो जाती है. सो डो स्टिकीनेस एक वन ऑफ द मेजर रीजन सॉल्ट का फॉर्मेशन, सॉल्ट की अमाउंट. और अगेन जैसे कि हमने कहा था कि पानी पे अगर यूज हो रहा है तो उसकी पीएच लेवल क्या है वो डिपेंड करती है, वो मैटर करती है कि डव किस तरीके का फॉर्म होगा. द सेम वे सॉल्ट जो है, सॉल्ट में अगर आप प्रॉपरली उसका यूज कर रहे हो तो ग्लूटेन फॉर्मेशन के लिए एक स्टिकीनेस जो है वो कम होती है प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट से. ओके, द नेक्स्ट इज that is, so these are the role of ingredients in bread making, major role of ingredients. उसके बाद में लेवनिंग एजेंट्स के भी रोल आता है, उसके बाद में फैट के रोल है, फैट का रोल है, लेवनिंग एजेंट्स के रोल है. लेकिन जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है, चार इंग्रेडिएंट्स हमने जैसे पानी, वाटर, यीस्ट एंड फ्लावर, ये जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है इनके रोल हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ ब्रेड मेकिंग. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ bread making methods: sponge and dough process, liquid formation process, straight dough method, no time dough process, and that is Chervol's
wood process, frozen dough method, continuous bread making process, and that's it. तो ये जितनी भी टाइप्स की प्रोसेस है that adds in modern technology. For example, initially when the bakery formation हुआ था, बेकरी की जो dough बनते थे तो एक नॉर्मल एक सेट प्रोसेस के थ्रू बनते थे. नाउ मैकेनिज्म आया, ovens का इन्वेंशन हुआ, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ यूटेंसिल्स का इन्वेंशन हुआ, मिक्सचर्स का इन्वेंशन हुआ, मैकेनिकल मिक्सचर्स, कमर्शियल मिक्सचर्स, उनका इन्वेंशन हुआ. इस तरीके से ईस्ट का भी इन्वेंशन हुआ. डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स यूज होने लग गए बेकरी प्रोडक्ट्स में. डिफरेंट कुकिंग टेक्निक्स आ गई, डिफरेंट यूटेंसिल्स यूज होने लग गए, मैकेनिकल प्रोसेस यूज होने लग गए. तो इस तरीके से बेकरी की जो टेक्नोलॉजी है, बेकरी का जो इन्वेंशन है, बेकरी की जो ग्रोथ है, वो इस तरीके से डेवलप हुई है. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ ब्रेड मेकिंग. द मेजर प्रोडक्शन मेथड यूज्ड इन होलसेल ब्रेड प्रोडक्शन आर द स्पॉन्ज एंड डव मेथड, द लिक्विड फर्मेंटेशन मेथड, स्प्रेड डो मेथड, नो टाइम मेथड, फ्रोजन डो मेथड, कंटिन्यूअस ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग एंड शोरीवुड ब्रेड प्रोसेस. We will discuss all the methods. Let's start with the sponge and dough process method. This is the most common commercial method. Used to manufacture bread. Sponge is prepared by mixing flour with water and yeast and allowed to ferment for a certain period of time. Subsequently, balanced flour, water and other ingredients added to sponge. The ratio sponge dough is maintained 70 to 30. Sponge dough का जो ratio होता है वो 70 to 30 ratio में करना है. After through mixing, dough is allowed to ferment for 3 to 5 hours, 30 degree Celsius. ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि कितने टाइम के लिए डो को फर्मेंटेशन करनी है, दैट इज अ प्राइमरी फर्मेंटेशन, और किस टेम्परेचर में करनी है. The dough is then divided into pieces. जैसे हमने ब्रेड मेकिंग प्रोसेस पढ़ी थी कि डो मिक्सिंग के बाद में डिवाइडेड पीसेस करने के बाद में उसे सेकंड कुकिंग के लिए रखा जाता है. द सेम वे द डो इज अलाउड टू फर्मेंटेड 3 to 5 hours at 30 degrees Celsius. The dough is divided into pieces to peel bread loaves of desired weight. The dough pieces are then rounded, give a rest period of 7 minutes, that is the second resting, and then sheeted, shaped and pan. The proofing of dough is carried out 55 minutes at 42 degrees Celsius and 85% relatively humidity. The bread loaves are subsequently baked at 230 degrees Celsius for 18 to 20 minutes, cooled, sliced and wrapped. Sponge dough method सबसे बेसिक मेथड, सबसे फर्स्ट मेथड है ये, और अभी भी यूज की जाती है, दैट इज स्पॉन्ज डो मेथड. इसके जो टेम्परेचर की बात करें, इसके लिए दो प्रूफिंग होती है. फर्स्ट प्रूफिंग होगी 3 to 5 hours की 30 डिग्री सेल्सियस में. टेम्परेचर की अगर बात करें 30 डिग्री सेल्सियस में उसकी फर्स्ट प्रूफिंग होती है. सेकंड प्रूफिंग जो की जाती है उसकी वो 7 मिनट्स के लिए की जाती है, और वो सेम टेम्परेचर में ही होती है, बट वो कम, उसका जो टाइम पीरियड होता है कम होता है. फर्स्ट कुकिंग के बाद में उसे राउंड शेप में करके जितने भी साइज का कमर्शियल रिक्वायरमेंट है, आज पर रिक्वायरमेंट जो भी साइज की रिक्वायरमेंट होगी वो उस पर्टिकुलर साइज में उसको कट करके बाउल में राउंड शेप में रख के उसे सेकंड कुकिंग के लिए रखा जाता है. सेकंड कुकिंग होने के बाद में उसे 55 मिनट्स के लिए 42 डिग्री सेल्सियस में उसे रखा जाता है. एंड ब्रेड लोव सब्सिक्वेंटली बेक की जाते हैं 230 डिग्री सेल्सियस में की जाती है, एंड 18 to 20 मिनट्स के लिए किए जाते हैं. और उसके बाद में उसे कूल करके रैप किया जाता है फॉर सेल. So next is liquid fermentation process. Principle for this process is the same as the sponge dough method, except that is use a liquid instead of plastic sponge. सिंपल है, पूरी की पूरी टेक्निक एज ए स्पॉन्ज डो मेथड की तरह ही है. उतना ही फर्मेंटेशन टाइम लगता है, उतना ही उसी टेम्परेचर में उसे बेक किया जाता है. वाटर एंड फ्लावर का रेशियो भी वही होता है, सिर्फ उसमें लिक्विड, एक्सेप्ट दैट इट्स यूज अ लिक्विड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक स्पॉन्ज, बस इतना ही फर्क होता है.
Straight dough method. All formula ingredients are mixed in a single step at the mixer. स्ट्रेट डो मेथड का मतलब होता है कि इसमें कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं दिया जाता है किसी भी इंग्रेडिएंट्स को, सारे इंग्रेडिएंट्स ऑल एट वन टाइम ऐड किए जाते हैं। इसको ही ऑल इन वन प्रोसेस भी कहते हैं और कमर्शियली ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज होती है क्योंकि बड़े बड़े मशीनरीज में सारे इंग्रेडिएंट्स ऑल एट वन डाले जाते हैं, पानी तक उसमें all at one डाला जाता है and then it mixes and it goes for the fermentation, then it goes for the second cooking and then it goes for the oven and then उसकी पैकेजिंग हो जाती है। So resting dough method में all formulas ingredients are mixed in a single step at the mixer. The dough mixed to full gluten development and then fermented. Fully fermented dough is then handled same as sponge dough method. This produce is used by retailer or for specialty bread. Retailers और specialty breads के लिए ये formula use होता है। जैसे कि कहा कि दिस इज टाइम सेविंग मेथड, इससे टाइम सेव होता है, इससे मशीन्स में मैकेनिज्म में बहुत सारी हेल्प भी मिलती है क्योंकि क्विक मेथड होती है, इसलिए वो वेल यूज मेथड मानी जाती है। नो टाइम dough process, that is the third method, no time dough process. So this method is the same as the straight dough method except mixing is carried out mainly mechanically by the action of high energy input of special mixer. This method is the same as the straight dough method. Straight dough method की तरह ही उसे same method है ये, except mixing is carried out mainly mechanically by the action of high energy input of special mixer. Commercially ये बहुत ज़्यादा यूज होती है स्पेशल मिक्सचर के साथ, मैकेनिज्म में ही। अगर कोई प्रोसेस जो है फॉर एग्जांपल सिंपल इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो टाइम एंड स्ट्रेट डो मेथड। सो स्ट्रेट डो मेथड कैन बी मेड मैन्युअली टू, बट नो टाइम डो मेथड ओनली मेड इन मशीन्स। बाकी सब सेम होता है, सारे इंग्रेडिएंट्स ऑल एट वन टाइम ही ऐड किए जाते हैं। सिर्फ ये है स्ट्रेट डो मेथड मैन्युअली भी हो सकती है, मशीन में भी हो सकती है, लेकिन अगर नो टाइम डो प्रोसेस है तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ मशीन्स में ही होगी, इसे मैन्युअली नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत बल्क में ही किया जाता है। दिस मेथड इज द सेम एज स्ट्रेट डो मेथड एक्सेप्ट मिक्सिंग इज कैरिड आउट मेनली mechanically by the action of high energy input of special mixer. This mixing state is further enhanced by addition of various ingredients such as pistons and yeastful and proteolytic enzyme. The mixed dough is given short, no fermentation, then divided, rounded, molded, cooked and baked. This method is suited for frozen dough manufacturing and retail bakeries. So next process we discuss, that is this process is used widely world over. It was originated in United Kingdom. The basic principle is closed high-speed mixer with a special mixer configuration blades. The mixing is generally accomplished under vacuum. Two types of mixer are widely used, Tweedy and Stephen. The oxidant used in this process are ascorbic acid, that is called ADA. That is Sherwood process. This process is used widely world over. It was originated in UK. The basic principle is closed high-speed mixer with special mixer configuration blade. इस प्रोसेस में जो ब्लेड यूज किए जाते हैं मिक्सर्स के, वो एक स्पेशल मिक्सर कॉन्फ़िगरेशंस में यूज होता है। यहाँ पे अभी डायग्राम नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट देयर आर स्पेशल ब्लेड्स। मैकेनिज्म जो होता है, अगर आप मशीन्स की अगर बात करोगे तो डिफरेंट स्पेशल टाइप्स की मशीन यूज की जाती है। दिस मिक्सिंग इज जनरली accomplished under vacuum. Two types of mixer are widely used, Tweedy and Stephen. इन पर्टिकुलर मिक्सर का ये नाम होता है और इस नाम के जो मिक्सर होते हैं वो यूज होते हैं इस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट इज कंटिन्यू ब्रेड प्रोसेस। इन दिस मेथड द डो इज प्रिपेयर्ड कंटिन्यूअसली एंड ऑटोमेटिकली इन क्लोज्ड चैम्बर। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स इन यूनाइटेड स्टेट is represented by two systems, dough maker process developed by John C. Baker and Ampho process which was introduced by American Machine and Foundry Co. Company. In both methods, high amounts of oxidant are required due to high mechanism abusing during the mixer and
एक्सट्रूशन ऑपरेशंस। आप देख सकते हो कि ये जितनी भी मिक्सर है मॉडर्न डेवलप टेक्नोलॉजी से, जितनी भी नई टेक्निक्स डेवलप हुई है उनमें एक मिक्सर की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। वो अगर बिक्री में अवेलेबल होना चाहिए, वो अगर अवेलेबल नहीं है वो हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते, वो टेक्निक फॉर्म नहीं होती, क्योंकि उसके लिए जो स्पीड लगता है, उसकी जो ब्लेड्स की डिज़ाइन लगती है, उसके लिए जो फॉर्मेशन होना चाहिए, उसी टेक्निक का यूज तभी हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। So as you can see in the diagram, आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रेड मेकिंग प्रोसेस फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे स्पॉन्ज ऑन डो मेथड्स के अकॉर्डिंगली, डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे स्पॉन्ज ऑन डो मेथड है, उसके बाद में स्ट्रेट डो मेथड है, नो टाइम मेथड है एंड कंटिन्यूस ब्रेड मेकिंग मेथड्स है। तो स्पॉन्ज ऑन डो मेथड में फ्लावर, वाटर एंड यीस्ट जो है वो ऐड किया जाता है, मिक्सिंग द स्पॉन्ज। उसके बाद में फर्स्ट डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 टाइप की यहाँ पे प्रोटीन दी गई है, फर्मेंटेशन प्रोटीन्स है। उसके बाद में यहाँ पे अवन में ला के उसे डिवाइडिंग बॉल्स के अंदर उसे प्रोडक्शन हाउस में किया जाता है। आप ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझ लीजिए। अगर आप देख सकते हो तो स्पॉन्ज डो मेथड और स्ट्रेट डो मेथड में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, स्ट्रेट डो मेथड जो है वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आप मैन्युअली उनको कलेक्ट करने हैं, उसके बाद में ये सारे जाएंगे, बाकी की प्रोसेस उसके एज इट इज सेम होगी पैकेजिंग पर। नो टाइम मेथड में ऑल इंग्रेडिएंट्स सारे एक चेम्बर में, एक आप इस तरीके का एक कंटेनर आप इसे कह लीजिए, इस कंटेनर, सारे इंग्रेडिएंट्स कंटेनर में एक ही टाइम पे ऐड होते हैं और उससे फिर बाद में कुकिंग के लिए रखा जाता है। वहाँ से ये निकल के ये आती है डिवाइडिंग प्रोसेस में। डिवाइडिंग प्रोसेस होने के बाद में इनकी राउंडिंग्स होती है, डिवाइड होने के बाद में इनको राउंड शेप में किया जाता है। राउंड शेप में करने के बाद में इंटरमीडिएट प्रूफिंग जो होती है, ये इस केस में इंटरमीडिएट प्रूफिंग हो रही है। इंटरमीडिएट प्रूफिंग तीनों भी मेथड्स में हो रही है, आप ध्यान से देखिएगा। इंटरमीडिएट प्रूफिंग के बाद में इसे मोल्डिंग के लिए रखा जाता है, मोल्डिंग के बाद में इसे पैनिंग में रखा जाता है, पैनिंग में मतलब शेप्स में, उसके बाद में इसे रखा जाता है इस पर्टिकुलर प्रूफिंग। दिस इज द फाइनल प्रूफिंग, और फाइनल प्रूफ होने के बाद में ये ब्रेड निकलता है यहाँ पे बेकिंग के लिए, एंड देन बेकिंग होकर ये निकलता है पैकेजिंग के लिए। तो आप अगर देखोगे तो रिमेनिंग जो प्रोसेस है, रिमेनिंग प्रोसेस सारे की सारी सेम होती है। किसी भी स्ट्रेट डो, स्पॉन्ज डो, नो टाइम, कंटिन्यूस मेकिंग मेथड में इम्पोर्टेंट जो होता है वो इनके ऊपर के जो इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग जो प्रोसेस होती है वो मैटर करती है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या नाम दिया जाए। ये स्ट्रेट डो है या स्पॉन्ज डो है या नो टाइम, ये इंग्रेडिएंट्स ऐड होने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है। जैसे कि डिलेड मेथड भी एक होती है, जैसे कि फ्लावर शुगर बैटर मेथड होती है, डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती है केक मिक्सिंग में। वैसे ही सेम ब्रेड मिक्सिंग में भी डिफरेंट टाइप्स की मेथड यूज की जाती है। कंटिन्यूस ब्रेड मेकिंग, सो कंटिन्यूस ब्रेड मेकिंग, सो एडिंग ब्रूइंग इंग्रेडिएंट्स, ये सारे आप कंटेनर में मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद फर्मेंटेशन किया जाता है, उसके बाद में उसको आप देख सकते हो रिमेनिंग है, और उसके बाद में रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग डिवाइडिंग इनटू द बॉल्स, और रिमेनिंग जो प्रोसेस है, रिमेनिंग प्रोसेस एज इट इज सेम। ओके, देन स्टेलिंग ऑफ ब्रेड। स्टेलिंग ऑफ ब्रेड क्यों है? रीजन, बेकरी प्रोडक्ट्स आर अंडरगो फिजिक केमिकल सेंसरी एंड माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस during the storage. The generic terms of this is stilling. Stilling means series of changes that causes a decrease in consumer acceptance other than that resulting from the action of spoilage microorganisms. The typical characteristics of stilling of bread are that the crust loses crispness and crumb becomes firm. Other associated changes are loss of flavor and emergence of stale flavor. The main cause of stealing of bread is moisture migration from crumb to crust. The complete mechanism of stealing of bread is not yet understood, but the theory given by Schloss French is the most accepted one. According to this theory, retrogenation of starch is the underlying reaction of stealing. Starch generalizing during the baking and
amylase is leached out. Amylose components crystallize upon cooling, impart firmness to the bread, which indicate the freshness of the bread. सो स्टिलिंग जो है इस डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसे इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है. ये डायग्राम में आप देख सकते हो फ्रेश ब्रेड से स्टेल ब्रेड किस तरीके से क्या क्या उनमें चेंजेस होते हैं, इस डायग्राम में डिस्क्राइब किया गया है. सो दिस इज द वे वी आर कवर्ड ऑल आवर ब्रेड टॉपिक्स. इस पूरे यूनिट में ब्रेड मेकिंग टेक्नोलॉजीज भी देखिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रेड मेकिंग समझा हमने. इसमें फॉल्ट्स भी देखे ब्रेड्स के. हमने इस सेशन में जैसे कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ रोल्स, ब्रेड के मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उनके रोल्स क्या होने चाहिए, किस तरीके के एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ये सारा कुछ हमने इस पूरे सेशन में पढ़ा है. आई होप यू गाइस आर वेरी मच क्लियर विथ योर बेसिक टेक्निक्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क. थैंक यू.